Hi friends, I am Dr. Dhananjay Singh. I will present you classification of antibiotics. So antibiotics classification is divided in three parts: inhibitor of cell wall synthesis and protein synthesis inhibitors, and inhibitors of nucleic acid synthesis and function. The inhibitor of cell wall synthesis is two types. It's the others में vancomycins and balicitrazine, and beta-lactam antibiotics में is 4 monobactams, carbapenems, cephalosporin and penicillins. Penicillins are divided in 3: natural penicillin G and penicillin V, and anti-staph, methicillin, and extended spectrum amoxicillin and ampicillin. What is the protein synthesis inhibitor? It is the 4 types: and chloramphenicol, clindamycin, and macrolides and tetracyclines. So macrolides, it is the 3 drugs, and erythromycin, azithromycin and clarithromycin. And tetracycline is contain 3 drugs, doxycyclines and minocyclines and tetracyclines. Inhibitors of nucleic acid synthesis and function में mainly quinolones, metronidazole. Quinolones is contain ciprofloxacin and metronidazole contain flagyls. One by one देखते हैं. केमिकल स्ट्रक्चर: सल्फोनामाइड्स विच इज सल्फोडाइजीन्स, सल्फोन्स, डेप्सोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड्स विच इज नोन एज पास. डायमिनोपिरिमिडिन्स, इट इज द ट्राइमेथोप्रिम. बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स: पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मोनोबैक्टम्स. टेट्रासाइक्लिन्स इज द ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स एंड डॉक्सीसाइक्लिन. And nitrobenzene derivatives contain chloramphenicol and aminoglycosides. Example: streptomycin, gentamicin and neomycins. Macrolides antibiotics contain examples: erythromycin, roxithromycins, and polypeptide antibiotics contain polymyxin B and colostrum bactericin. Nitromindazole, metronidazole, timindazole and quinolones. Nalidic acid, norfloxacin and ciprofloxacins. Isoniazides, pyrazidamide and ethonamide. And polyene antibiotics: Nestin, amphotericin B and hyamcin. Imidazole derivatives contain micronazoles, ketonazoles and cladinazoles, and others drugs are rifampicin, clindamycin and vancomycin, cycloserine, ethambutol. Mechanism of action: inhibit cell wall synthesis. Penicillins, cephalosporin, cycloserine and venosanicid bacterium which is the inhibit the cell wall synthesis. Cause leakage from cell membranes. कौन कौन से ड्रग्स है जो कॉजेज करते हैं लीकेज सेल मेम्ब्रेन से? पॉलीपेप्टाइड्स में पॉलीमाइसिन्स, क्लोस्टिन्स, बैक्टीरियम. एंड पॉलीन्स में एम्फोसेरिन बी एंड नेस्टिन एंड हेमामाइसिन. इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. कौन कौन से ड्रग्स है जो इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोराम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेमाइडिसिन. इंटरफियर विद डीएनए फंक्शन. कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो डीएनए के इंटरफेयर करते हैं? विच इज रिफाम्पिसिन, नॉर्फोक्सिन एंड मेट्रोजोल. इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस विद द acyclovir and interfere with intermediated metabolism which is sulfonamides and sulfones and ethambutol. सी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरी एक्टिव. कौन कौन से ड्रग्स हैं जो अगेंस्ट वर्क करते हैं? तो एंटीबैक्टीरियल्स हैं पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड एरिथ्रोमाइसिन. एंटीफंगल ड्रग्स हैं ग्लूसोफेल्विन, कीटोनिडाजोल. एंड एंटीवायरल ड्रग्स हैं एसाइक्लोविर एंड जिंडोवोडिन. एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं क्लोरोक्विन एंड मेट्रोनिडाजोल. एंड एंटी हेलमेटिक ड्रग्स हैं मेबिडाजोल. हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. नैरो स्पेक्ट्रम इज पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स हैं टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोराम्फेनिकॉल. हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एक्शन. व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्रग्स, कैसे कैसे एक्ट करते हैं? तो प्राइमरी बैक्टेरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोराम्फेनिकॉल एंड एरिथ्रोमाइसिन. Primary bactericidal drugs are penicillin, cephalosporin, aminoglycosides, polypeptides and ciprofloxacin. Antibiotics are obtained from. कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम लोग फॉर्म करते हैं? फंगी से हम लोग पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड ग्रेसोफेलिन ऑब्टेन करते हैं. एंड बैक्टीरिया से पॉलीमिक्सिन बी, क्लोस्टिन एंड बैक्टीरियसिन ऑब्टेन करते हैं. एक्टिनोमाइसिस से हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोराम्फेनिकॉल ऑब्टेन करते हैं. रैपिड किलिंग एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड मेट्रोनिडाजोल जो कि फ्लैजिल है. एंड बैक्टीरियासाइडल, द एबिलिटी टू किल द बैक्टीरिया. बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि उनमें एबिलिटी होता है वो किल करते हैं बैक्टीरिया को. और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं जो कि एबिलिटी करते हैं इनहिबिट करते हैं या रिट्रेड करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को. तो मैंने ऊपर एग्जाम्पल आपको बताया बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक के. ये प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हैं और ये प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडिक
ड्रग हैं जो कि प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो होते हैं वो किल करते हैं बैक्टीरिया को डायरेक्ट, और प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में डिफरेंस ये दिखाया गया है, ऊपर से मैंने एग्जांपल बताया ही था। तो ये डिफरेंस है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स का। और हम फिर देखते हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के टारगेट कैसे कैसे कौन कौन से वर्क करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था सेल वॉल सिंथेसिस में बीटा लैक्टम ड्रग्स, वेनोमाइसिन एक्सेट्रा ये सब है। तो ये सब सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन में जो क्विनोलोन्स और मेट्रोनिडाजोल इनहिबिट करते हैं, और आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं रिफापिन एंड राइबोफ्लुविन। और प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली 50S राइबोसोम्स को क्लोरोफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडोमाइसिन एंड स्टेरोप्रोग्रामिन्स ये इनहिबिट करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली 30S राइबोसोम को एमिनोग्लाइकोसोन एंड टेट्रासाइक्लिन्स एंड एक्सोजोनाइडोन इनहिबिट करते हैं। और एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन एंड ट्राइमेथाप्रिम ये और पैरा अमीनोसाइक्लिक एसिड इनहिबिट करते हैं। तो ये बेसिक साइट्स हैं एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी के। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे ऊपर कि कौन इनहिबिट करते हैं एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। तो हम लोग देखते हैं नॉन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कौन कौन से हैं। एरिथ्रोमाइसिन जो कि 250 to 50 ग्राम 500 मिलीग्राम, क्विड मीन्स 1 डे में 4 टाइम्स ड्रग्स को देना है। क्लिंडामाइसिन 150 to 300 मिलीग्राम क्विड, और 300 to 450 मिलीग्राम क्विड हम लोग देते हैं। ये नॉन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं। सिफेलोस्पोरिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन 250 ग्राम टू 500 मिलीग्राम 2 to 4 टाइम्स डेली देते हैं। डॉई ऑक्सीसाइक्लिन 100 ग्राम एवरी 12 आवर फर्स्ट डे, देन 100 मिलीग्राम डेली। एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन 250 ग्राम टू 500 ग्राम 12th आवर में 1 टाइम देते हैं। मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल लोडेड डोज 1 ग्राम, इंट्रावेनस मेंटेनेंस डोज 500 मिलीग्राम क्विड या ओरल डोज 500 मिलीग्राम क्विड देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर डोज, व्हाट इज़ द प्रॉपर डोज ऑफ, कैसे हम लोग प्रॉपर डोज देते हैं ड्रग्स का। तो प्रिस्क्राइब और एडमिनिस्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टू अचीव द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट बट नॉट इनफ टू कॉज इंजरी टू द होस्ट। हम लोग ऐसे ड्रग्स देते हैं कि जो कि वो एक प्रिस्क्राइब हो, एडमिनिस्टर द्वारा सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग ड्रग्स देते हैं कि जो कि ज़्यादा इंजरी ना करे होस्ट सेल को, और ये एक्ट करे, एक्शन रेगुलरली वर्क करे जाके बॉडी में। रिलेशनशिप बिटवीन एंटीबायोटिक डोज एंड कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड बॉडी वेट, इंडिविजुअल डोज इक्वल टू बॉडी वेट बाई 7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। हम लोग ऐसे डोज वेट के हिसाब से डोज देते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला है इंडिविजुअल डोज इक्वल टू बॉडी वेट बाई 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। अंडर डोजिंग माइनस इमरजेंस ऑफ बैक्टीरियल रेसिडेंस। एज, कैसे हम लोग एज निकालते हैं, कैसे कि चाइल्ड्स को यंग और ओल्ड में कितने हम लोग देंगे ड्रग्स को, कैसे डोजेज। तो द डोज ड्रग ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम एडल्ट डोज। यंग फार्मूला इक्वल टू चाइल्ड डोज इक्वल टू एज बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, एंड डायलिंग फार्मूला इज द चाइल्ड डोज इक्वल टू age by 20 into adult dose. Proper time interval, what is the time interval to drugs to give the patients. The frequency of dosing is also important, and plasma half life is equal to t half. The using doses interval for the therapeutic use of antibiotics is 4 times the t half. And proper route of administration, oral route most common route, जो कि हम लोग ड्रग्स मोस्टली हम लोग ओरल रूट से ही देते हैं। तो ये प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली ओरल रूट से ही हम लोग ड्रग्स को देते हैं। बट सम ऑफ द बैक्टीरिया आर नॉट सस्पेक्टेबल टू द ड्रग्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस बाय ओरल रूट, एंड हेंस पेरेंटल रूट्स आर चूजन। अगर हम लोग कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सस्पेक्टेबल होते हैं ड्रग्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस करते हैं ओरल रूट से, तो हम लोग पेरेंटल रूट्स चूज़ करते हैं। टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग किस टाइमिंग पे दे रहे हैं, कॉन्सिस्टेंसी ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, अगर वो कॉन्सिस्टेंसी है, अगर हम ओरली दे रहे हैं, अगर वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो हम लोग इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा देंगे। आफ्टर एन इनिशियल रिस्पॉन्स हैज़ बीन अचीव्ड इमीडिएट डिसकंटिन्यूस ऑफ पेरेंटल थेरेप्यूटिक्स शुड नॉट बी डन सिंस दिस कैन लीड टू ए फॉल इन थेरेप्यूटिक ब्लड लेवल्स कॉजिंग recrudescence of the infection. Bacteria are usually irritated and when antibiotic is given for 5 to 7 days. एंटीबायोटिक ड्रग्स कंबाइंड थेरेपी, व्हाट इज द एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कंबाइंड थेरेपी होता है, हम लोग 2 ड्रग्स को कंबाइन करके देते हैं, जैसे रेटिनॉल विच मिनिमाइज द इमरजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म
and to increase the certainty of a successful clinical outcome, to treat mixed bacterial infection and severe infection of unknown etiology, to prevent supra infection and decrease the toxicity without decreasing efficiency। अगर कोई हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं, अगर उसकी एफिशिएंसी कम हो, अगर वो टॉक्सिक कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग रेटिनोल देंगे, मतलब दो ड्रग्स को कंबाइन करके देंगे जिससे कि उसकी एफिशिएंसी भी बनी रहे, वो जाके एंटीजेंस पे वर्क भी करे और उसका हम लोग को कोई इन्फेक्शन ना हो, टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। इसके लिए हम लोग कंबाइंड ड्रग्स देते हैं। इंडिकेशन इन द पेशेंट्स विद द लाइफ थेरेपी सेप्सिस ऑफ अननोन एटियोलॉजी when increased bactericidal effects against a specific organism is desired, example treatment of enterococcus infection, penicillin and aminoglycosides, prevention of rapid emergence of resistant bacteria, example tuberculosis, अगर हम लोग कोई रैपिड इमरजेंस हो रहा है, रेसिस्टेंट करते हैं बैक्टीरिया को, तो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस जैसे एग्जांपल में, ट्रीटमेंट ऑफ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन विच कुड प्रोग्रेस टू मोर सीरियस लाइक रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इन्फेक्शन, एग्जांपल पेनिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल हम लोग ड्रग्स देंगे। इसमें रूल्स, 2 बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स प्रोड्यूस सुपराएडिटिव इफेक्ट्स बट नॉट एंटागोनिज्म, दैट इज 1+1 इज ग्रेटर देन 2। अगर 2 बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स प्रोड्यूस दे रहे हैं, अगर हम लोग drugs produce supraadditive effects but not antagonism, the combination of bacteriostatic and a bactericidal drugs generally result in diminished effect, so that is 1+1 is less than 2 and 2 bacteriostatic drugs are never inhibitory, so 1+1 is equal to 2। पेशेंट मॉनिटरिंग, कैसे हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, एडजेंटिव सर्जरी, फ्लूइड बैलेंस एंड न्यूट्रल सपोर्ट्स के द्वारा हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट को। केयर मस्ट बी टेकन स्पेशली ऑन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कैसे कौन कौन से रिस्पॉन्स कर रहा है ड्रग ट्रीटमेंट के द्वारा, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ड्रग्स एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, मोस्ट कॉमनली द रिस्पॉन्स बीइंग बाय द सेकेंड डे एंड इनिशियली प्रोड्यूस ए सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग बेटर। मोस्ट कॉमनली की रिस्पॉन्स होता है 2 डेज में ड्रग्स के प्रोड्यूस करते हैं, वो फीलिंग बेटर करता है। देयर आर आफ्टर ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट अकर्ड इंक्लूडिंग ए डिक्रीज इन टेम्परेचर, स्वेलिंग, पेन एंड लेसिंग ऑफ ट्रिज्मस, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।